Let's start the spectroscopy of the organic chemistry. In that, we are focusing on the number of signals. We have studied the 2 3 examples in the earlier class. So how to find out the number of signals from the given compounds. So if there is the CS3, CS2, CS2 types of compounds, here is the one first compound. Okay, this is the first compound. In this compound, that is a CS3, CS2, CS2, CS3. It is an example of N-butane. So N-butanes clearly indicating that this CS2 group means red color. Okay, this CS3 groups and this CS3 groups. These are the equivalent types of the groups. Okay, then this CS2 and this another CS2, both are the same types, equivalent types of the protons are there. So means these two groups CS3 and CS3 gives the same signals, that is the one types of the signals, same types of the protons giving the same one types of the signals. Means 2CS3 means A types give the one signals, then another this CS2 and this CS2 will give the second signals. Means in a given compound, that is N-butanes, gives the two NMR signals, two PMR signals. Understand? In the second examples, that is the propane, N-propane. In case of the propane molecules, here are the also these CS3 groups and these CS3 groups. The both CS3 groups are of having the same types of the protons, and these carbons, that is CS2, is having the different types of the protons. Means in case of the N-propane, we will get the two types of the protons, six hydrogens having the same types, equivalent types, and two hydrogen of the CS2 at different types. Means we will get the two types of the NMR signals in this case. So protons are different from the A protons are different from the proton B. Each type gives one NMR, that is the PMR signals. ये एग्जाम्पल समझ में आया सबके? हेलो? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है अंडरस्टैंड करने के लिए कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन है या नहीं है. ओके, तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन को अगर जो समझना है आपको, तो यहाँ पर ये बेस्ट एग्जांपल है आपको बताने के लिए कि प्रोटॉन को इक्विवेलेंट है कि नहीं. इक्विवेलेंट कब बोलते हैं हम उसको? कि जब उसके सराउंडिंग एक सेम रही, उसके सराउंडिंग में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इन्वायरमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेम रहे, तब हम क्या बोलते हैं उसको? इक्विवेलेंट प्रोटॉन. जैसा कि अभी हम कंपैरिजन दो प्रोटॉन का है, one is the Ha and another one is the Hb. We are comparing these two protons. Okay, now we see the environment around this Ha and Hb. Okay, the surrounding atoms Ha is the Br and surrounding to the Hb is the Br. Means the both Br are the same types. Means the surrounding environment for Ha and Hb is the same.
means the Ha and Hb is the equivalent types of the protons, and both are the Cs to the Br. Both are, this Hb is the Cs to the Br, Ha is also Cs to the Br. So in this case, we can say that Ha and Hb are the equivalent. Ha and Hb are the equivalent. At the same times, at the same times, in the another example, here Ha1 and Hb, these two examples are there. Okay, Hb is the equivalent to the, Hb is the Cs to the Br, Hb is the Cs to the Br. At the same time, Ha is also Cs to the Br. Means that both Ha and Hb are the Cs to the Br, means the same types of the protons are there. So these are the equivalent types of the protons. Means give equivalent types of proton gives the one signal. एक टाइप के प्रोटॉन रहेंगे, भले ही अलग अलग कार्बन पे क्यों नहीं रहते, लेकिन उसका एनवायरनमेंट सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, और उसके सराउंडिंग सेम होने की वजह से हम उसको इक्विवेलेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं. इस यहाँ पे देखिए एग्जांपल, अब यहाँ पे दो एग्जांपल है, एक एच ए और एच बी, दोनों भी वन वन हाइड्रोजन है, एक बात होगी. सेकंड चेक करेंगे हम कि इसके सराउंडिंग में क्या है, ये सी से ऑक्सीजन आइटम को और ये सी से बी आर आइटम को, यानी इसके सराउंडिंग यहाँ पे चेंज हो रही है. ओके, तो इन दिस केस एच ए जो है वो सी से मिथॉक्सी ग्रुप को, एट द सेम टाइम एच बी जो है वो सी से बी आर ग्रुप को. तो दोनों इक्विवेलेंट नहीं हुए, एच ए और एच बी नॉट इक्विवेलेंट. तो इन दिस केस एच ए अलग एनएमआर सिग्नल देगा, एच बी अलग एनएमआर सिग्नल देगा, भले ही दोनों एक ही कार्बन पर है लेकिन डबल बॉन्ड को अटैच है. इस वजह से इस केस के अंदर हम क्या बोलते हैं, फिर ऐसे केस में सराउंडिंग चेंज होने की वजह से ये दोनों भी अलग अलग है, तो यहाँ पर ये आपको दो सिग्नल देंगे. तो क्या बोलेंगे फिर, 2 एनएमआर सिग्नल. क्या मिलेगा यहाँ पे, 2 एनएमआर सिग्नल. अगर जो यहाँ पर CH3 रहा, ये जो हाइड्रो सी है यहाँ पर देखिए, तो ये जो CH3 है इसका एक ही इन्वायरमेंट है, इसको यहाँ पर ये एक ही सिग्नल देगा, तो नंबर ऑफ सिग्नल पूरे कंपाउंड के अंदर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्नल्स 2 हो जाएंगे यहाँ पर. अब एग्जाम्पल यहाँ पर एक दिया वाला है, देखिए PMR का एग्जाम्पल और साथ में PMR का स्पेक्ट्रम भी दिया वाला है. अब ये दोनों केस में देखिए यहाँ पर. ओके, तो यहाँ पर ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है ये क्या है, एसिड ग्रुप है. कौन सा ग्रुप है, एसिड ग्रुप है. और यहाँ पर ये CH3 ग्रुप अटैच है, एक सब्स्टिट्यूएंट. यहाँ पे दूसरा CH2 ग्रुप अटैच है, एक सब्स्टिट्यूएंट. ओके, तो कंपैरिजन हम किसका करते हैं, सबसे पहले दो CH3 जो ग्रुप अटैच है वो सेम है क्या देखते हैं. सबसे पहले सेम अगर जो रहेंगे, इक्विवेलेंट रहेंगे, तो हम उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम उसको, कि अगर जो सेम रहे तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, कि ये एक टाइप का क्या शो करेगा, एक टाइप का एनएमआर सिग्नल शो करेगा. तो CH3 को चेक करना है, तो देखिए CH3 के इधर के साउंड में क्या है, हाइड्रोजन है. CH3 का इधर चेक करेंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है. यहाँ पर एट द सेम टाइम ये CH3 का इधर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर चेक करेंगे इधर भी हाइड्रोजन है. तो दो साइड से इक्विवेलेंट है. और ये जो है एसिडिक ग्रुप, ये सिमेट्रिकल ग्रुप है, सेंटर में आता है, इसलिए ये दो जो CH3 है, मीन्स क्या बोल सकते हैं आपको, ये जो 2 CH3 है, तो ये दोनों CH3 के जो प्रोटॉन है वो कैसे है, इक्विवेलेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटॉन्स है. तो 6 प्रोटॉन एक सिग्नल देगा, 6 प्रोटॉन एक सिग्नल देगा. इसलिए देखिए यहाँ पर ये सिग्नल काफी हाई है, ये जो सिग्नल दिख रहा है ना आपको, ये सिग्नल काफी हाई, तो 6 प्रोटॉन का इंटेंसिटी बढ़ जाती है. 6 प्रोटॉन है, इसलिए सिग्नल आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई दिख रहा है. हेलो, सर ये स्लाइड हमको डेफिनेशंस वाली ही दिखती है, ये नहीं दिखती है, समझ नहीं रहा है इसमें. नहीं सर, अभी कौन सी दिखती है, वही दिख रही है, केमिकल शिफ्ट वाली.
अच्छा अच्छा ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, आप दिख रही है? हाँ सर, अभी दिख रही है। ओके, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल की बात कर रहा था मैं। एग्जाम्पल के अंदर दो CH3 ग्रुप है, यहाँ पर दो CH3 ग्रुप है। ओके, और ये दो CH3 जो ग्रुप है, ये दोनों भी कैसे हैं? इक्विवेलेंट टाइप्स ऑफ CH3 ग्रुप है। ये CH3 ग्रुप इक्विवेलेंट है इसके साथ। अब इसका रीजन क्या है दोनों इक्विवेलेंट होने का? कि इसके सराउंडिंग में जो एटम्स है वो भी क्या है? सेम टाइप्स का सराउंडिंग है इसको, इसलिए दोनों इक्विवेलेंट है। अब ये दोनों CH3 इक्विवेलेंट होने की वजह से दोनों का मिलकर एक पीक मिलेगा, यानी इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ेगी। यहाँ पर इंटेंसिटी क्या रहेंगी? हाईएस्ट। इसलिए देखिए यहाँ पर जो पिक मिल रहा है आपको, ये हाईएस्ट इंटेंसिटी का पिक मिला है आपको। ओके, ये समझने के लिए एक्चुअली मैं बता रहा हूँ। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको नहीं आता है, ना ही ये ग्राफ सिलेबस में है, लेकिन आपको इसका यूज समझ में आना चाहिए कि ये जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है किस तरह से रिप्रेजेंट होती है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर ये एग्जांपल बता रहा हूँ। सेकंड देखिए, अब आपको CH3 का वैल्यू तो मालूम है, 2.37 के अराउंड में है। ओके, अगर जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होता तब इसकी वैल्यू ज़्यादा रहती, लेकिन ये इनडायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है, यानी कार्बन को अटैच है, और कार्बन जो है रिंग को अटैच है, इस वजह से इसकी वैल्यू 2.37 के अराउंड में आई। उसके बाद देखिए, ये जो प्रोटॉन है, रेड कलर का प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, और दूसरी बात ये प्रोटॉन, ये दोनों भी प्रोटॉन कैसे हैं? इक्विवेलेंट टाइप्स के प्रोटॉन है। क्यों? इसके सराउंडिंग में इधर ग्रुप है, इसके सराउंडिंग में इधर ग्रुप है, इसके सराउंडिंग में इधर CH3 है, इसके सराउंडिंग में सराउंडिंग सेम है, इसलिए दोनों प्रोटॉन इक्विवेलेंट है। तो क्या करेंगे? टू हाइड्रोजन मिलकर हमको एक पीक देंगे। ओके, टू हाइड्रोजन हमको एक पीक देगा। तो यहाँ पर एक पीक आपको यहाँ से मिल गई, यस से। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन का ये जो हाइड्रोजन है नीचे वाला 7.22 वाला, ये भी हाइड्रोजन एक पीक देगा। ओके, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। क्यों? तो वन हाइड्रोजन की इंटेंसिटी बहुत कम रहती है, तो इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे, इंटेंसिटी की वैल्यू जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, इसको समझने के लिए आपको एक्चुअल में यहाँ पे दिया वाला है, देखिए अगर जब समझते होंगे तो यहाँ पे ग्राफ पर देखिए, आपको यहाँ पर ये 6 के आगे, यानी 7 के आगे यहाँ पर एक वैल्यू दिख रही है आपको, यहाँ पर 4 दिख रही है। यहाँ पर एक ये जो लाइन ड्रॉ है, ये बता रही है आपको इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू। ओके, केमिकल शिफ्ट क्या रहता है हम पढ़ने वाले हैं आगे। केमिकल शिफ्ट वैल्यू जो कि हम ppm में लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में लेते हैं। उसके बाद देखिए, इसकी जो वैल्यू है रेड की, ये क्या है? 7.73, थोड़ी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर दिख रही है आपको। इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? दो हाइड्रोजन है, ये सिंगल हाइड्रोजन की थी, इसलिए इसकी डबल हाइड्रोजन है, इसलिए इंटेंसिटी बढ़ गई। देखिए यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन होने की वजह से इसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा है यहाँ पर। उसके बाद ये जो है एसिडिक हाइड्रोजन, इसकी वैल्यू हमारे पास 12.6 के अराउंड में होती है, 12.6। ओके, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर पीक दिख रहा है आपको, एक छोटा सा पीक, एक ही हाइड्रोजन का है, सिंगल हाइड्रोजन का। तो इस तरह से हम जो है इसको इंटरप्रीट करते हैं। इस तरह से इक्विवेलेंट प्रोटॉन जो है मिलकर एक इंटेंसिटी शो करते हैं, इसलिए इक्विवेलेंट प्रोटॉन का एक वैल्यू है। देखिए अब एग्जांपल भी आपके नोट्स के अंदर दिया वाला, क्या एग्जांपल है? इक्विवेलेंट प्रोटॉन मस्ट बी केमिकली एज वेल एज स्टेरियो केमिकली इक्विवेलेंट। एग्जांपल दिया वाला है यहाँ पर ब्यूटेन का। ब्यूटेन कितने पिक्स शो करता है? एनएमआर सिग्नल्स, दो एनएमआर सिग्नल शो करता है। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया 1 क्लोरोप्रोपेन का, इसके अंदर कितने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? ये CH2 अलग है, सराउंडिंग है Cl, ये CH2 अलग है, सराउंडिंग है CH2CH3, ये CH3 अलग है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ आपको एनएमआर सिग्नल 3 मिलेंगे। ओके, ये तीसरा एग्जांपल देखिए इथेनॉल का। इथेनॉल के केस में क्या होगा? इथेनॉल के केस में भी
यहाँ पर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। ये तो क्लियरली इंडिकेट हो रहा है CH3 का अलग रहेगा, CH2 का अलग रहेगा, OH का अलग रहेगा। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल्स हमको 3 मिलेंगे। उसके बाद आती है केमिकल शिफ्ट, जो मैंने बार बार वर्ड यूज किया है, केमिकल शिफ्ट, जो कि हम ppm में काउंट करते हैं। तो एक्चुअल में क्या है ये, वो रिलेटिव पोजीशन बताती है। ओके, एब्जॉर्प्शन इन द एनएमआर, एनएमआर के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है, ओके, उसकी रिलेटिव पोजीशन जो बताती है इन स्पेक्ट्रम, उसको हम केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। सो इट इज़ अ यूनिट लेस, इसका नंबर यूनिट नहीं है कोई भी, सिर्फ ppm पार्ट्स पर मिलियन हम यहाँ पे एक यूनिट असाइन करे वाला है। ओके, एक्चुअल में जो इसके यूनिट है वो कैंसल आउट हो जाते हैं कैलकुलेशन के अंदर, इसलिए यहाँ पे यूनिट नहीं दिया गया, ppm एज असाइन किया गया पार्ट्स पर मिलियन केमिकल शिफ्ट के लिए। ओके, जैसा कि H1 NMR है। अब H1 और NMR की जो रेंज रहेंगी, वो यूजुअली NMR के स्पेक्ट्रा की रेंज कहाँ से कहाँ तक रहती है, 0 से लेके 12 तक की रहती है, यानी 0 केमिकल शिफ्ट वैल्यू 0 टू 12 ppm तक, वहाँ पर 10 या फिर 12, अगर जो एसिड आ गया तो 12 तक ppm तक उसकी वैल्यू होती है। उसको डेल्टा से भी इंडिकेट करते हैं केमिकल शिफ्ट वैल्यू को। तो यूजुअली अब C13 हमारे पास नहीं है, इसलिए छोड़ो उसको, इसकी वैल्यू ppm में क्या कैलकुलेट होती है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। एग्जाम्पल देखिए, अगर जो हम जो सॉल्यूशन यूज करते हैं NMR के अंदर, वो होता है इस तरह का सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टेट्रामिथिल सिलेन बोलकर यहाँ पर हम यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट NMR के लिए। अब ये सॉल्वेंट का फायदा ये है, इसको यूज इसलिए करते हैं कि ये खुद का पिक शो नहीं करता, यानी इंटरफेयर नहीं करता इसका पिक। इसका पिक क्या मिलेगा, अब इसकी जो CH3 ग्रुप है, इसको कितने CH3 ग्रुप है सिलिकॉन को टेट्रामिथिल सिलेन में, 4। 4 है। 4 इक्विवेलेंट है क्या, यस। यस। तो 4 इक्विवेलेंट है, इसका मतलब यहाँ पे कितने प्रोटॉन हो गए, 12 प्रोटॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, 12 प्रोटॉन हो गए, यानी 12 प्रोटॉन इक्विवेलेंट है, सेम टाइप के हो गए चारों भी, चारों का एनवायरनमेंट सेम हो गया। इसलिए जब भी कोई आप इसका जो स्पेक्ट्रा देखेंगे, ओके, इसको सॉल्वेंट बोलकर यूज करेंगे, इसका अलग से पीक रहेगा कहीं पे, जैसा कि देखिए यहाँ पर टेट्रामिथिल सिलेन, इसका एक पीक अलग से रहता है, वो इनिशियल में रहता है, तो हम समझ जाते हैं कि पहला जो पीक है वो किसका है, टेट्रामिथिल सिलेन का। इसलिए ये इंटरफेयर नहीं करता है रिजल्ट के अंदर, ये साइड में आ जाता है, इसके वैल्यूज अलग आ जाते हैं जनरली, क्यों, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव आइटम को अटैच है, सिलिकॉन को अटैच है, इस वजह से इसके, तो जनरली हम रेफरेंस स्टैंडर्ड बोलकर टेट्रामिथिल सिलेन को जनरली यूज करते हैं, और 0 पॉइंट इज डिफाइंड एज द पोजीशन, ओके, जहाँ पे हम टेट्रामिथिल सिलियन को हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद केमिकल शिफ्ट के बारे में और दो चीज़ें हैं, एक है शील्डिंग इफेक्ट, दूसरा है डी शील्डिंग इफेक्ट। अब इस शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है, जनरली हम जो है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ओके, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, ओके, वहाँ पर एक रीजन क्रिएट होता है, वो रीजन के अंदर अगर जो मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक रीजन एंड डायमैग्नेटिक रीजन वहाँ पे क्रिएट होता है, ओके, तो रीजन के अंदर इनसाइड आने वाले जो आइटम्स रहेंगे उनको कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़्यादा, और जो आउटसाइड रहेंगे उसका इफेक्ट कुछ और, ओके। तो ये जो है शील्डिंग डी शील्डिंग इससे एसोसिएटेड है, शील्डिंग इफेक्ट एंड डी शील्डिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आना, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आना, इसका जो इफेक्ट रहेगा उसकी वजह से यहाँ पर शील्डिंग और डी शील्डिंग होती है। शील्डिंग और डी शील्डिंग की वजह से वैल्यूज, केमिकल शिफ्ट वैल्यूज है वो चेंज होते जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया गया, व्हेन प्रोटॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड more close to an electropositive atom or more applied magnetic field is required to cause excitation. This case is called as shielding effect, okay. And when proton is present outside the magnetic field close to the electronegative atom, less applied magnetic field is required. At that time this is called as de-shielding effect. अब यहाँ पर आपके नोट्स में भी पॉइंट दिया गया है केमिकल शिफ्ट वैल्यू के बारे में, यहाँ पर लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ द मॉलिक्यूल इज सर्कुलेट अंडर द कंडीशंस, ओके, जैसा कि यहाँ पे प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड अगर जो रखा गया, रिजल्टिंग इन द सेकेंडरी और द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड करने के बाद खुद भी वो उसका जो प्रोटॉन है वो एक्ट एज अ टाइनी बार मैग्नेट, इसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगी। If the induced magnetic field opposes the applied magnetic field, okay,
the proton is said to be the shielded. Okay, if the induced field reinforce the applied magnetic field, यानी उसके साथ में एडजस्ट हो जाती है, एक ही डायरेक्शन में एडजस्ट हो जाती है, तो तब हम क्या बोलते हैं, इट इज द डिशील्डेड. और वैल्यू का क्या इफेक्ट होता है, देखिए अगर जो कोई शील्डेड होता है तब वैल्यू उसकी क्या होती है, कम होते जाती है, और कोई डिशील्डेड होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती जाती है. जैसे यहाँ पे ग्राफ में बताया गया कि डिशील्डिंग मीन्स केमिकल शिफ्ट वैल्यू इंक्रीज होना, शील्डिंग मीन्स केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट वैल्यू यहाँ पर कम होना. तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हम जो है देखते हैं. तो अभी हम लोग स्टॉप करते हैं, रिमेनिंग पार्ट जो है